Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. अवरोह मासे हरि पासु Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ફરી પાછી ટ્રાય કરજો.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय मुष्टाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सदृशि श्रीमद् His Divine Grace Love Charanarvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki, ISKCON Deputy Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, ब्रजजमी वृंदावन धाम की जय, नवदीपांपुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देव की जय, तुलसी महारानी की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर परमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, glories to Shri Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, Guru Maharaj. કેમ છો? ચાલે છે. શું કોરોના ચાલે છે? So, what do you want me to speak on? હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં કે પછી ઇંગ્લિશ? નિવૃત્ત તરસૈ ઉપગીયમાના કહ ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદા પવાન વિરજેત बिना पशु। जय Hindi Vedda subject. Everybody speaks Hindi. Hindi. Okay. तो इंग्लिश भी बता समझो। इंग्लिश भी बता समझो।
सब देख हमारे सर्वे माता की जय। आओ तभी तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। 90%। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम की महिमा के लिए बहुत सुंदर समझ दिए हैं। और जो भगवान का नाम लेने की लायकात होती है उसके बारे में भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करते करते सारे भक्त समाज को समझाया कि भगवान के नाम की कृपा कि यदि चाहना होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो देखो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हमें भगवान के नाम की महत्ता काफी समझाई जाती है। भगवान के नाम में अरुचि एक सामान्य भौतिकवादियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। अरुचि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनीनानुराग। अनुराग यानी अरुचि। तो दुर्दशा ये है। तो दुर्दशा का कारण क्या है? मिथ्या अहंकार, भौतिक बुद्धि और भोगों की तृष्णा। असत तृष्णा भी कहते हैं उसे, जो हृदय में ग्रंथि के रूप में बनी रही है। तो हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि उसका निर्देश करते हैं। असत तृष्णा, हृदय ग्रंथि, असत तृष्णा और अपराध, ये तीनों
अपने हृदय में गांठ बांध कर बैठे। हाँ? तो जब तक सत्संग के द्वारा, जैसे तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद में कपिल देवहूति तो कहते हैं कि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवितः भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। भक्ति पैदा करने के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है। तो आवश्यक श्रद्धा और उसके प्रति हमें जो आकर्षण होना चाहिए और भक्ति की सिद्धि, ये तीनों साथ साथ का जो अनुभव है वो सत्संग में होना चाहिए। इसलिए सत्संग में सबके उत्कर्ष के लिए ऐसा उदाहरण के रूप में और शिक्षा के रूप में सिखाने की आवश्यकता होती है। तो भक्ति के सिद्धांत सांख्य योग में और नारद भक्ति सूत्र में भी सही एक ही ढंग से बताए हैं, और भगवान स्वयं 11वें स्कंद में उद्धव को जो गीता सुनाते उसमें भी भक्ति के सिद्धांत ही है। और इन दोनों में और इन चारों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो एक ही चीज बारंबार दोहराने से याद आती है, नहीं तो विस्मृति होती है। इसलिए हमें नियमित बनने की आवश्यकता बताते हैं। तो सत्संग में भगवान का बल, भगवान के नाम और भगवान के जो गुणगान है, कीर्तिगान है, वो हृदय कर्ण रसायन कथा का अनुभव कराने के लिए कान में से हृदय में उतरने की आवश्यकता बताते हैं। कान और कानों से बाहर निकालने की नहीं आवश्यकता बताते हैं, कान में सुनकर खोपड़ी में भरने की भी आवश्यकता नहीं बताते। भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा, हृदय और कर्ण दोनों की ही आवश्यकता है। आपके पास यदि हृदय है तो सुनो, हृदय गम नहीं करना चाहते तो सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। तो भवन्ति हृद कर्ण रसायन तज्जोषणावम अपवर्ग मर्तनी, अपवर्ग यानी मुक्ति का मार्ग। और जो हृदय में जो भगवान की कीर्ति कान से हृदय में जो संचार होता है, उसमें कोई रसायनक कथा, रसायन यानी रसों की आना जाना होता है। रस कान द्वारा स्वीकारे नहीं जाते, हृदय द्वारा स्वीकारा जाता है। ये हृदय जहाँ चेतना का उद्गम है उसे हृदय कहते हैं। ये दबकने वाला हृदय नहीं, हमारी चेतना, और चेतना परमात्मा से प्राप्त होती है। हम अपनी चेतना लेकर आए ही नहीं, हमें दी गई। अब दी गई चेतना को हम भौतिक तत्वों के साथ उसका उपयोग करते हैं, उसको दूषित करते हैं। दूषित होने से हमारे हृदय में कोई भावना पैदा होती है कि भगवान का नाम सुनकर जो हमारी शुद्धि होनी चाहिए तो होती ही नहीं, क्योंकि ये चेतना त्रिगुणात्मक भाव में लपेटी रहती है, और हम समझते हैं कि ये चेतना अपने इंद्रियों को संतोष देने के लिए। इंद्रियों में चेतना है, स्पर्शेंद्रियां सारी शरीर में दी गई है, लेकिन स्पर्शेंद्रियों में ज्यादा तो हमें दुख की इंद्रियां ही मिलती है, सुख की इंद्रियां कम होती है और मर्यादा में होती है। लेकिन सारे शरीर में ज्यादातर दुख की इंद्रियां का ही हमें संवेदन होता है। तो
जबकि भगवान का नाम शुद्ध, वो चेतना को शुद्ध करता है, चेतो दर्पणम। तो भगवान के नाम की महिमा कोई मामूली नहीं बताई है, लेकिन सुनने सुनने में फर्क होता है। हाँ। तो जिस ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया है, उस तरह हमें और भक्ति के की जो जो नियम अनुसार हमें जैसे मार्गदर्शन दिया जाता है कि हृदय और कर्ण में जो भगवान के नाम की कीर्ति का रसायन है, उसके द्वारा ही जो हमारी चेतना शुद्ध होती है, तो शुद्ध चेतना से हमें शुद्ध रस का आस्वादन वो भी भगवान की प्रीति के लिए करना है। तो भगवान के सेवा में हमारी चेतना का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी इंद्रियों में जो चेतना है वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा के लिए इसीलिए दी गई, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दी है। वो तो हम चोरी करते हैं। हाँ? तो उसकी मर्यादा में रहकर हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सीधा साधा है कि मतिम न कृष्ण स्वतः परतो वा मिथो विपत्तित ग्रहवृतानां अदांत गोपी विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणाम। प्रहलाद महाराज 7वें अध्याय 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को मारने के बाद ये सारा परिचय प्रहलाद महाराज द्वारा मिलता है इनकी प्रार्थनाओं में विशुद्ध भक्ति का। नरसिंह महाराज के तो तेरा जैसा विशुद्ध भक्त है, तो विशुद्ध भक्ति कहाँ से किसने प्राप्त की? अतः तो नारद मुनि ने मेरी माँ को सुनाया था और मैंने सुना। कयाधु प्रहलाद की माँ भक्त रूप में प्रस्तुत नहीं हो रही है, लेकिन प्रहलाद हो रहा है, क्योंकि ये जो भक्ति तत्व जो है और भगवान का नाम के जो स्तर है, स्टेटस, वो परव्योम का है, यानी पर तत्व में वो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है। इसलिए कोई भी बीच में अवरोधजनक शरीर हो, क्योंकि प्रहलाद तो माँ के पेट में था, तो माँ का शरीर अवरोध नहीं करता। आध्यात्मिक तरंगे जो हृदय रसायन कथा अनुभव करने के लिए हमें शरीर का कोई अंतराय या विक्षेप बीच में आता ही नहीं। चाहे कितना जड़ शरीर हो, मृत आत्मा को भगवान का नाम ही पहुंचता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है। यदि जिनकी सुकृति अच्छी है, भक्तियोन्मुखी सुकृति करके वो चले गए, तो उनको हरिनाम के अलावा और कुछ हम उत्तेजन नहीं दे सकते। जितनी पवित्रता से हम भगवान का नाम जब मृत शरीर के सामने भी करते हैं, तब मृतात्मा को भगवान के नाम का ही उत्तेजन मिलता है। आगे उसका भाव सुनिश्चित रूप से भगवान उसे भक्ति करने के लिए ही मौका देते हैं। इसी तरह एक भक्त पुत्र हो तो अपने पिता का तारण भी कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज ये श्रवणम कीर्तन क्यों कर सकते हैं? ये दोनों उनके स्मरण में हमेशा बना रहा है। स्मरण भक्ति प्रहलाद की है भगवान के प्राप्ति के लिए, स्मरण भक्ति है, लेकिन श्रवण कीर्तन बिना स्मरण आ ही नहीं सकता। सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चेत सर्व विधि निषेधोस्यु ये तो किंकर। सारी विधियां
जो हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, विधि और नियम का पालन ये स्मरण के लिए ही है, हमें मदद करते हैं। ये 4 नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? 4 नियमों का पालन करते आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो अतिम न कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सांसारिक लोगों पर मत्ती पैदा होती ही नहीं कि मैं कृष्ण के बारे में सोचूं। ये सारी जिंदगी में हमने कभी देखो तो ज्यादातर जीवन ऐसा बिताया है कि कृष्ण के बारे में हमने सोचा नहीं। तो अतिम न कृष्ण, स्वतः मेरी खुद की कोशिश से भी मैं नहीं कर पाता, दूसरों की मदद से भी नहीं कर पाता, unless they are devotees। सत्संग की तो यही महिमा है, भक्त बिना कोई मदद नहीं करने वाला है। या हम वैसे ही हम एक दूसरे का मत के अनुसार जो मेजोरिटी इनके पास चले जाएं तो उसके द्वारा भी हम भगवान श्री कृष्ण पर मति स्थापित नहीं कर सकते। तो मतिम न कृष्णे स्वतः परतरो वा मिथो भी पद्येता। मिथो यानी समूह, लोक संग्रह, सभी साथ में मिलकर पर यदि वोटिंग करें कि कृष्ण भगवान है, कोई के नहीं है, कोई क्या है, तो भगवान कृष्ण पर मति पैदा करने में असमर्थ है। मिथो भी पद्य, जहां तक वो लोग ग्रह व्रती है, ग्रह व्रत यानी कि सांसारिक बंधनों में, खटपटी जीवन में हमेशा रचे, इसलिए भगवान कृष्ण पर मति पैदा होती ही नहीं। अदांत गोपी विशताम तमेश, वो जो अपने इंद्रियों की चेतना जब भगवान के निमित्त वो चेतना का उपयोग नहीं करते तब तक हमारी इंद्रियां अदांत कहलाती है, अनब्रिडल्ड। उसे हम अपने ढंग से भगवान के लिए उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। अदांत गोपी विशताम तमीश्रम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणा, बारंबार हम गन्ने के कुचे को चबाकर हमें कोई जूस मिलता नहीं ना, इसी तरह सारे जीवन में हमारी इंद्रियां जब तक अदांत रही है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल रही है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के विषय में पड़ी रहती है, तो भगवान पर मति पैदा नहीं हो सकती। तो मति कैसे पैदा होगी? प्रहलाद महाराज और चेतावनी देते हैं कि नैषाम मतिम तावत उरुक्रमांग्री, नैषाम मतिम, ये भगवान श्री कृष्ण पर जो मति है, तो नैषाम मतिम तावत उरुक्रमांग्री, उरुक्रम यानी भगवान स्वयं, इनके बारे में मति कब तक पैदा नहीं होगी? जब तक जिस हेतु के लिए हमें ये प्रयोग करना है, कौन सा हेतु है? हमारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में जुड़ाने का जो प्रयत्न, उसे भक्ति कहते हैं। ऋषि के संसेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब तक वो अर्थ के लिए, हेतु के लिए नहीं है, नैषामतिम तावत उरुक्रमांग्री न स्पृश्यति अनर्थोपगमम उपशमम। उपशमम यानी हम अनर्थों को जब हम शांत कर देते हैं, अनर्थ क्या ज्यादातर इंद्रियों से ही होते हैं। हमारी इंद्रियां का दुरुपयोग को अनर्थ कहते हैं। अनर्थ निवृत्ति करने को कहा है ना, तो ज्यादातर इंद्रियों द्वारा अनर्थ होते रहते हैं। तो अनर्थोपगमम यदर्थम, जिस हेतु के लिए हमारी इंद्रियां को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, अब अभी वो कौन कर पाएगा?
महीयसाम यदि पादर ज्योतिषेकम, जब तक साधु पुरुष इनके चरण कमलों को रज की धूलि का अभिषेक अपने मस्तक पर नहीं करते। क्यों? क्या महत्ता है इन लोगों के चरण कमल की धूलि की? निष्किंचनानाम नवृणीत चावत, ये निष्किंचन है, भगवान के लिए सब कुछ। इन्होंने इंद्रियां भी कंट्रोल में रखी है, इनकी सेवा में रत रखी है, तदुपरांत सारे बंधनों से छुटकारा पा लिया है। भगवान के अलावा इनको कोई भी दूसरा विषय पर मन नहीं डूबता। तो भगवान का गुणगान कौन नहीं गा सकते? यदि भगवान का गुणगान ही एकमात्र ऐसा विषय है जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, नियोजन करता है भगवान की सेवा में, तो वो कौन नहीं कर सकता? निवृत्त तरसई ही उपगीयमान, जिनकी तरस तृष्णा, तरस यानी तृष्णा निवृत्त नहीं हुई है, निवृत्त तरसई, जिनकी हुई है वो उपगीयमान है। जिनकी हुई है तरस निवृत्त हो गई है, तो वही गा सकते हैं उपगीयमान। निवृत्त तरसई उपगीयमान भवौषधि श्रोत्र मनोभिराम। फिर से वही प्रिंसिपल आया। ये भव दुख भव रोग की औषधि कानों द्वारा लेनी है, श्रोत्र मनोभिराम। ये भवौषधि कान खोल के सुन लेना और कान द्वारा ही अपने हृदयंगम करना, बीच में खोपड़ी को मत लाना। दूसरों की सलाह भी नहीं चाहिए, सीधा सीधा भगवान का नाम हृदयंगम जब होता है, हृदय में उतर जाता है, तब कह उत्तम श्लोक गुणानुवादा। ये भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिनकी सारी प्रकृति थी जो है वो ऐसे स्पष्ट और हृदय अंगम हो जाने वाले भगवान के गुणगान, और उसकी जो जो संरचना है संस्कृत में, तो श्लोकों में दी गई, लेकिन ये तो उत्तम श्लोक है। जो उत्तम श्लोक नहीं है उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। सारे समाज में कृष्ण भगवान के नाम पर अलग अलग कवियां जो होते हैं, तो अपने मन की भावनाओं के अनुसार भगवान का गुणगान नहीं गाते हैं, लेकिन भगवान की लीला की थोड़ी झांकी देते थे। भगवान के चरित्र का जो आध्यात्मिक गुणगान ये लोग नहीं गा सकते, तो इन लोगों के भजन से हमें ये भगवान के भाव कभी पैदा नहीं होते। हमने चर्चा की थी ना, हमारा कानो काड़ूड़ो क्या गया जानवी माता जानवी माता ऐसे भजन गाते हैं ना, कौन है कानो काड़ूड़ो, अरे तुम काड़ूड़ो तो तुम्हारू शू क्यों? भगवान कौन है इनको तत्व से जानने की आवश्यकता होती है। जानाति तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदर्थः। भागवत तो एक ही स्पष्टता करता है, जो जो
भगवान को तत्वतः नहीं जानते हैं, वो गुजराती जानते हैं इनको, या रणछोड़ या क्या बोले द्वारकाधीश, बस। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक चरित्र को पहचानते नहीं, तो भगवान के व्यक्तित्व को कैसे पहचान पाए? तो जाना कि तत्व। तो ये आवश्यक है। तो ये उत्तम श्लोक में ही हमें प्राप्त होते हैं भगवान की जानकारी। और उत्तम श्लोक बोलने वाले कौन है? विशुद्ध भक्त। इन लोगों के हृदय से जो जो स्तुतियां निकलती हैं वो सारे जन समाज के भलाई के लिए है। इसलिए वो साधु संत भगवत चर्चा करते हैं और इतने हृदय में उतर जाने वाले ऐसे श्लोक की संरचना करते हैं। इनको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादान। कौन गुणानुवादान नहीं कर सकते बिना पशुघ्न। पशुघ्न यानी कि जीव हत्या करने वाले। यदि हमने अपने आत्मा की भी हत्या की है, कैसे कि इनको ये भौतिकता के मूर्खता वाला व्यवहार में हमने जोड़ा रखा है, बंधन में पड़ा रखा है आत्मा को, वो आत्महत्या आत्महा कहलाता है। जानबूझकर हम ये भगवान की बातें समझना नहीं चाहते हैं तो आत्महा कहलाएंगे। जो आत्महा है तो उसका पराभव निश्चित है। पराभवस्य अबोध जातो जावान्न जिज्ञासम आत्मतत्वम जावत क्रिया तावत मनोबहि कर्मात्मकम एव शरीर बंधन। ये भी स्पष्टता है। नूनम प्रमत्त गुरुते विकर्म जडेन्द्रिय प्रीतरण आपनोति न साधु मन्ये आत्मनो अयम् असन्नपि क्लेश दशास देह पराभवस्य अबोध जातो जावान्न जिज्ञासम आत्मतत्वम जावत क्रिया तावत मनोभिः कर्मात्मकम एव शरीर बंधन। तो हमारी जो ये भवरोग की ये परिस्थिति है वो हमें पराभव देती है। पराभव यानी फेल्योर, नासीपास, डेड फेल्योर। जो व्यक्ति अपने आत्मा की पहचान बिना मर जाता है तो मिथ्या जन्म हुआ उसका। यह जन्म अपने आप की जो अंतरंग भगवान के अंश के रूप में, आत्मा के रूप में पहचान करने के लिए मिला है। तो अवश्य उसके लिए हमें भगवान के नाम का ही प्रयोग करके भगवान का साक्षात्कार, यानी कि अपनी पहचान भगवान की पहचान दोनों साथ साथ में एक साथ होती है। ये भागवत धर्म, ये सिद्धांत श्रीमद् भागवत का है। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ही ये स्पष्टता हो जाती है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतश्च भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतर अनावेद्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। दृष्ट एव आत्मनीश्वरे इसका मतलब क्या है? आप और परमात्मा दोनों सामने सामने साक्षात्कार के में एक दूसरे का परिचय करोगे।
परमात्मा तो जानते ही है, परिचय हमें करना है, लेकिन व्यक्ति परमात्मा के सामने जब आता है तो परमात्मा का अंश, चाहे परमात्मा आत्मा के हृदय में भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन क्वालिटेटिव ग्रेटनेस है, वही तो हमारी चेतना संचार करते हैं, शक्ति। नहीं तो हम अपनी चेतना की संचार शक्ति लेकर नहीं आए। जब तक परमात्मा आत्मा के साथ नहीं होता तो जीवन संभव नहीं है। तो यूं मत समझना कि मैंने अपनी कमाई से ये सब सारा खड़ा किया है, नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मैं समाज में योगदान दे रहा हूं। अरे हम तो कुछ नहीं करते। इतनी विनम्रता हमें बनानी पड़ती है, तब भगवान अपने अंतरात्मा में स्पष्ट रूप से हमारे हर एक कार्य में साथ देंगे और इनकी प्रीति बनाने के लिए वो हमेशा हमें मदद करते रहे। ये भगवान का नाम का प्रताप है। कौन भगवान का नाम गा सकता है, कौन नहीं गा सकता, किसमें अरुचि है। कितने समय पहले गुरु की कृपा से भगवत नाम प्राप्त किया है और कौन क्या प्रगति कर रहा है इस दिशा में, ये शिक्षा पर ही आधारित है। तो हमें सीरियस बनने के लिए, क्योंकि उसमें जो वास्तविक फायदा है तो फायदा हमारे उत्कर्ष का है। हम क्या प्रगति कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के नाम पर इतनी सारी प्रगति और स्पष्टता बनाने के लिए तो श्रीमद् भागवत की रचना की। तो हमें प्रगति करनी है। तो इतनी ऐसे नहीं कि दीक्षा हो गई એટલે बेड़ा पार, नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं तो हम देखें हमारी प्रगति बहुत स्लो स्पेस पर चल रही है, लेकिन हमें भक्ति का प्रयोग ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते, इसमें तो हमें डबल फेस नहीं होना चाहिए, विरोधी भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एकमात्र इस कलयुग में उद्धारक नाम है। तारक नाम है, उद्धारक नाम है। पहले उद्धार करता है, बाद में तारण करता है, लेकिन हम तो उद्धार देखने के लिए तत्पर है। सबको कैसे हम मदद कर सके उद्धार के लिए। उद्धार यानी उठना तो सही ना, कि उड़ जाना, उसको उद्धार कहते हैं। उद यानी ऊंचा, धारण करना, यानी कि हम जो अवस्था में है उससे ऊपर उठे, उसको उद्धार कहते हैं। भौतिकता से आध्यात्मिकता में उद्धार कहलाता है। लिबरेशन भी उद्धार की स्थिति है, कि भौतिक बंधनों से मुक्ति तो एक स्थिति होती है जैसे लिबरेशन या मुक्ति कहते हैं, लेकिन मुक्ति में तो असली भक्ति चालू होती है। तो भक्ति हमें ये भौतिकता से भी छुड़वा कर भगवान के धाम में ले जाने के लिए समर्थ है। लेकिन बिना नाम भक्ति का, श्रीमद् भागवत में तो वहां तक कहा है, अतः कृष्णस्य नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम अपनी इंद्रियों से इनका अर्थ जानना या इनका परिचय करना भगवान के शक्ति का इंद्रियों के बस में नहीं है, क्योंकि हमारी तो जड़ इंद्रियां जड़ वस्तुओं को परिचय करने में लगी है।
भगवान तो गहराई से बहुत बातें करते हैं। हाँ? कि हाँ, अपनी इंद्रियां कोई भी जड़ वस्तु के सामने आती है। हाँ? चलो, चाइनीज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे है। हाँ? सही ना? उसका कारण क्या है? हमें बेवकूफ बनाने का, हमें बेवकूफ बनाने का कारण है। हाँ? हमारी आंखें जड़ वस्तु की सुंदरता, बाहर की सुंदरता देखने में बहुत आदी बन गई है। हाँ? एक कस्टम। हाँ? तो आंख ऐसे प्रोडक्ट पर जब देखती है तो आकर्षित हो जाती है। हाँ? ये आकर्षण तो जड़ का आकर्षण है। जो प्लास्टिक है, थोड़ा रंग इधर डाला, वो करा, और उसकी चालाकी या अंदर स्विच से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये सब लुभावना जो आकर्षण है, वो आंखों का जो विषय है वो रूप है। ये रूपवंत हमें खींचता है। तो रूप भी त्रिगुणात्मक है और आंखें भी त्रिगुणात्मक, और इंद्रियां जो आध्यात्मिक चेतना वाली होनी चाहिए उसके बजाय भौतिक चेतना वाली। तो हम ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट से भी हम आकर्षित हो जाते हैं। ये घर में देखो कितना चाइना का माल है? एक मृदंग चाइना का नहीं, नहीं तो वो भी बनाने लगे हैं, पता है, मेड इन चाइना। ये क्यों? मूर्खता। तो भगवान समझाते हैं भगवत गीता में कि ये गुण संग कहलाता है। गुणों का संग, त्रिगुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें शुद्ध सत्व तो है ही नहीं, मिश्र सत्व है, और बाकी रजोगुण और तमोगुण जो शिव जी को भी परेशान करते हैं कभी कभी, और ब्रह्मा जी तो परेशान होते ही रहते हैं। तो गुण संग कारणं गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मशु पुरुषः प्रकृतिस्तोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मशु। पुरुष यानी हमारा जो आत्मा है, भौतिक भोग का लालयित है, वो भगवान का भोगी होने का अनुकरण करता है कि मैं भी भोगी। इसलिए ये भोगी जीव को पुरुष कहलाता है। लेकिन ये झूठा पुरुष है। पुरुष तो भगवान को है, और पुरुषोत्तम अपने आप को 15वें अध्याय में बताते हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम है और हम उनका कॉम्पिटिटर पुरुष बन गए। तो पुरुष हम कहाँ है? प्रकृति स्थोपी। भगवान प्रकृति में नहीं रहते, हम रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? भुंक्ते प्रकृति जान गुण। हम तो ये 3 गुण जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को ही भोगते हैं। हमारी इंद्रियां भी ये तीनों गुणों ही लेकर भौतिक अवस्था में हमें बंधन में डालती है। तीनों। कोई भी वस्तु देखो, ये भी मेड इन चाइना है। सबके जेब में है, सबके जेब में चाइना। खोपड़ी चाइना की बनी गई है। लेकिन खोपड़ी भगवान ने चाइना की नहीं बनाई है। हाँ, वो तो संस्कार से हमें उसको बचानी है, नहीं तो मेड इन चाइना नहीं करनी। तो ये जो पुरुष यानी कि मैं झूठा पुरुष, सच्चा पुरुष तो भगवान है। मैं उपभोक्ता हूँ, वो भोक्ता है। तो पुरुष
प्रकृति स्थोपी, ये भगवान की भौतिक प्रकृति है, तो वो त्रिगुणात्मक है। भुंगते प्रकृति जान गुणा, मैं क्या प्राप्त करूंगा? 3 गुणों से बने हुए वस्तु को ही मैं प्राप्त करूंगा। इसलिए मेरा संग कारणम गुण संगस्य, ये वस्तु का संग नहीं है, ये गुणों का संग है। ये भी गुणों का संग है, कारणम गुण संगस्य। तो इसका उपयोग जब भगवान के लिए करूं तभी ही मैं बच पाऊंगा ना। हाँ? तो सद असद योनि में जन्म होने का ये जो कारण है, हम कौन से गुण के साथ संग कर रहे हैं, इस पर आधारित है। हाँ? तो भगवान का नाम लेने के लिए भी हमें कौन से गुण में रहकर कम से कम माला जपनी चाहिए। भगवान के नाम की सेवा कौन से गुण में रहेंगे? सत्वगुण का समय तो 1.5 घंटे का ही है, 1.5 घंटे का ही है ना सत्वगुण का, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या करते हैं? सोते हैं, यानी कि तमोगुण। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण का समय है, तमोगुण का नहीं है। इसीलिए हमें उठना चाहिए। हमारे हृदय में ही ये भावना, सात्विक भावना जो पैदा करनी है, तो सात्विक गुणों के अनुसार हमें संग करने की आवश्यकता है। तो भगवान का नाम ले सकते हैं। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्य बिना पशुना। हम जानबूझकर पशुता वाला जीवन जीते हैं। पशुता कैसे? कि हम जैसे पशु की हत्या करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा की हत्या करते हैं। स आत्मा आत्मा जो खुद को अज्ञानता में डुबोए रखता है, वो is committing suicide and कहवा। स आत्मा, तो कम से कम भगवान का नाम मिला है, तो जानबूझकर हमें उसे अज्ञानता में डूबे नहीं रखना है। इनका उद्धार करने के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ती है। तो पिकअप कर देना चाहिए वहां से, सही ना? निवृत्त तरसई, भगवान का नाम गाने में हमारी तरस छिपती है, हमारी सारी तृष्णा छिप जाती है भगवान के नाम से। और उपगीय माना, तभी हम खुले दिल से भगवान का गुणगान कर सकेंगे। जो विशुद्ध भक्त को सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, अविरत भगवान की कीर्ति बोलते रहते हैं वो। जो आत्मा होते हैं वही भगवान का गुणगान नहीं गा सकते, है ना? तो आप तो सभी भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं, तो अवश्य सारे बाल्टीमोर में तो प्रचार करना चाहिए। सिर्फ ब्लूम्सबर्ग स्ट्रीट में नहीं प्रचार, सब जगह। क्योंकि कोरोना में तो प्रचार ही और प्रसार दोनों ही आवश्यक है। तो ये हमें मौका भगवान देते हैं, तो अवश्य फायदा उठाना चाहिए।
किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, हम किसी को प्रचार करते हैं कि हाँ भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो वो लोग आसानी से स्वीकार करते नहीं है और आसानी से भक्ति में आसानी लगते नहीं। जब आपके बजाय प्रभुपाद जी ऐसा बोलते तो हाँ, तो तुरंत उनका इनका मतलब ये है कि जो कन्विक्शन श्रील प्रभुपाद जी के पास था हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। हाँ, तो वी हैव टू इंक्रीज द कन्विक्शन, सही बात है ना? है। सिंपल इक्वेशन। और प्रभुपाद जी ने कहा कि रिपीट आफ्टर मी, यू डोंट हैव टू यू नो create another device or another intelligent approach. Distribute by books, but you should read the books, otherwise what is the use of distributing? The books are for you first and then distribute. Like, how to control the mind, like, because Beat him. mind should not come in between. But beat him. Bhakti Siddhanta Saraswati gave us shoes and broom. Keep on beating. भगवान तो सादी भाषा में कह देते हैं कि जहां जहां से तेरा माइंड छटक जाता है वो खींच के वापस ला। पर बारंबार तुझे वापस लाना पड़ता है तो थोड़ा बीट भी करो। यस, करना ही पड़ेगा। कब तक बेवकूफ रहेंगे? सेंस कंट्रोल से माइंड कंट्रोल होगा कि माइंड से सेंस कंट्रोल? शमः दमः, पहले माइंड कंट्रोल बाद में सेंस कंट्रोल का। दमः यानी सेंस कंट्रोल, बट शमः दमः, शौचम शांति राज। अभी तो ब्राह्मण बन रहे हैं ना, तो अभी देखना ये करना पड़ेगा। कल का ही दिन है। शमः दमः तपः शौचम शांति राजोमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अब तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। Beat the mind. First mind control, then sense control. और ज्यादा और अंतरंग जाना है तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अभिमां पृथ्वीं शिष्यात्। सारा उपदेश दिया है। गुप्ता जी, हरे कृष्णा। Off the topic or with the topic? You are on the topic. No. The topic where the अरे सबसे ऊंचे टॉप पर है। बैठो बैठो, हमने कहाँ उतार दिया है? Off the topic में हाँ, प्राण प्रतिष्ठा, the thing, प्राण प्रतिष्ठा। Yeah. किसकी? when we get the deities and do the प्राण प्रतिष्ठा, to install the deities, ये तो मंदिर में है, घर में कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है? हाँ तो वही तो क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन घर में होती है। नहीं, क्वेश्चन तो मेरा अभी आगे है। The three things along with this प्राण प्रतिष्ठा
are we qualified in a way of just telling the mantras to do the pran pratishtha to a deity? That's number one. Number two, all those other installation of the murtis in people's houses. Nearly every house in India has deities in their worship. They have had no pran pratishtha. So if they are God, where they are worshipping, then why we need a pran pratishtha? See, in each and every atom, Paramatma is situated. तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कहीं? Is there any space that you do not have the presence of the Lord? So every matter also Naturally, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. Because you want to render service to the Supreme, therefore the Supreme is accepting the form in authorized way, and because we need to perform service to the Lord, He accepts the service in the form of the deity. तब प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, और Guru or senior devotee who is advanced in the knowledge can request the Lord to come and reside in the deity form. Now, that Lord is transcendent. But you are supposed to approach the deity with the mantras, to invoke the presence of the Lord to accept your services. So each and every offering, whether in the form of arti or form of naivedya, bhoga, everything, that you have to invoke the presence of the Lord by mantra. So mantra manifests the Lord. Pran pratishtha is not a ritual. It is a prayer to invite the Lord to reside in the deity form, to accept our services. That's what Prabhupada said. तो घर में तो अपनी सहूलत के अनुसार भगवान को रखते हैं, वहां प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं होती. लोग राधा कृष्ण को लाते हैं, पर राधा कृष्ण का तो समझते ही नहीं. जो जानाति तत्वतः एवं व्यक्ति यो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति नाम. His appearance and activities are so divine, we have to learn the divinity aspect to understand him. Generally, Bhagavan Krishna की मूर्ति सामने है, फिर भी we do not understand him. ये कैसी जड़ता है हमारे? We believe it, we acknowledge it, we accept it, but without conviction. Our Vedic system is a system of realization of the tattva and then apply. हम तो apply पहले करते हैं, तत्व जानते हैं. So this is what is happening when the over the time takes the toll of our intelligence and practices. We carefully avoid our sanskaras. Steina, is it convincing? Yeah, but the thing what you're saying is, you go to a shop where all the Krishna, Radha Krishna murtis are there, and I pick up one of the murti and install in my house and start worshiping. So you say, knowingly, but still I don't know. Until you have somebody chant the mantras and everything to say, okay, this is real. Is that what you say? What is the difference between faith and conviction? Yeah, so that's what. Shraddha और निष्ठा में अंतर क्या है? Shraddha always on the top. No,
Nishtha is more important than Shraddha. Shraddha remains shaky. It's a circumstantial origin. Generally, Shraddha should be developed by association. The origin of Shraddha, but association of the sadhus who are of the same practice. And they will explain you. Nishtha is more important. ना निष्ठा कब आएगी जब अनर्थ निवृत्ति आएगी तब. So we have to be very, very conversant with the teachings of Lord Shri Krishna and Chaitanya Mahaprabhu and his associates, because they have been trained up and they are training us. हमारा तो क्या है कि familiarity breeds contempt. तो सारी घर में जो अपनी सवलत वाली भक्ति होती है ना, वो भी contemptuous बन जाती है. We compromise anywhere and everywhere. When our brain stops working, okay, I will do whatever I think it is best. Now, then we do not get the desired result. It's a very stern discipline. Prabhupada says people generally avoid, but they are unfortunate. And even sadhus have no interest to give such instructions. So therefore, the process remains so much diluted. You know, people do not understand that ये तो हथौड़ा मार मार के सबके खोपड़ी में डालना पड़ता है. Am I telling anything new? Huh? No. Oh, I have to filter my voice. So, am I telling anything new? No. Yeah, but I'm trying to restructure according to our, familiarity, and try to just uplift. कि भाई आगे बढ़ना है. जैसे थे वैसे की स्थिति क्यों बनाए रखे? Is it very comfortable? Do you think this is a practice of retirement? स्मरण श्रवण और कीर्तन करने के बाद स्मरण का मौका मिलता है. तो हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर ने बोला कीर्तन में इतना ताकत है, उसमें श्रवण और स्मरण का उसका फल कीर्तन में है. उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. पहले श्रवण करने को कहा है, बाद में कीर्तन करने को कहा है. जब कान खोलकर सुनते नहीं तो बोलोगे कैसे? तो दोनों साथ साथ में जब होता है तो स्मरण अवश्य आएगा. Smaran is the result, but actually that result is available in the first phase. Second phase, the result will be little, personified with the deity worship. That is the second initiation when it comes. Archanam, Pujanam, Vandanam, right? But then advanced state is Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedana. These are all the processes in 3 different categories. They are all potent. Unless and until, Narad Muni spoke and Prahlad was able to listen. And that listening was enough during his stay within the womb of his mother. But he remembered. As soon as he came out, he remembered. He did not hear, but he remembered, and on the basis of his remembrance, he started teaching to his schoolboys, to the friends.
एक छोटे से बच्चे के मुख में इतने भारी भारी संस्कृत श्लोक, ऐसा क्यों? But that is called realized knowledge. A child can realize the absolute truth if he repeats the same truth. तो रिपीटिशन में कोई हमारी कोई खर्ची हो जाती है क्या? Prabhupada simply said, repeat after me. We don't want to repeat. Prabhupada सुना करो, फिर भी we don't want to repeat it. कितनी लेथार्जी होगी? We have to shake up ourselves. This is our personal asset and we have to grow. We have to grow it. Then we will become rich. Then we can distribute. We will become more rich. તમે તો કંઈ કહો. Humility is the door for going into bhakti. Surely. कीर्तनीय सदा हरि कैसे करोगे? प्रणतपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना नमानि नमानदेन कीर्तनीय सदा हरि. We have to develop. That's why we need Guru to observe that our development in us. Who will do that? हम लोग नंबर होना नहीं चाहते, इसलिए प्रगति नहीं. Huh? नंबर होना नहीं चाहते, इसलिए प्रगति नहीं. Yeah, lethargy, laziness. We think bhakti is cheap. Oh, I know Krishna, I know bhakti, I know everything, but I don't know myself, which is the most fundamental aspect. You know, because I'm on a swing pendulum. Madhyastha Shakti. The pendulum बंद होना चाहिए. Because our constitution is Krishna's internal energy, and we disregard it. तो उसके स्वभाव के अनुसार तो हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए. इसलिए भौतिक जीवन बाधा करता है. तो उसके प्रति वैराग्य लाने के लिए माता जी को नहीं कहा, पुरुष को ही कहा वैराग्य. तो ये भी तो लपटे हैं सभी, तो वैराग्य कौन सिखाएगा? वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा. और कोई प्रश्न है पीछे वाले सीनियर सिटीजन?
हाँ बोलो। जय राधे। Papers and Facebook and everywhere we hear and come to see that Hindu Dharma is going down. More and more people are Muslims and Christianity, they are going, numbers going up. So is it a cause of because we act too much? To me, Hindu Dharma is a man-made religion. Like Bhagavad Gita, people are not believing in that. They don't believe in Murti Puja and so many other things. Yeah, but the Hindu religion is a man-made religion. Vedic religion is not man-made religion. That is the root. We are holding to the roots, not the modernized techniques of following the religion by belief system. And they do not know anything more than 3 Purusha avatars of Krishna. Brahma, Vishnu and Mahesh. That's about it. The knowledge is completely dissatisfying. आधे लोग तो गप्पे ही मारते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में। हम लोग रीइंकारनेशन में मानते हैं। भगवान कृष्ण रीइंकारनेशन स्टॉप कराना चाहते हैं तो ये लोग कहते हैं हम मानते हैं। इसलिए संसार से छूटने की आवश्यकता क्या है? They will argue like this. जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम भगवद गीता का ही बताते हैं और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि हम शरीर है, आत्मा थोड़े है। तो यानी उसने भगवद गीता क्या समझी? ये मायावादी लोग, निर्गुण तत्ववादी लोग ऐसे अर्थघटन करके भटकाने वाले हैं अद्वैत सिद्धांत में। हम हिंदू हैं, हाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन कौन सा गर्व है भाई हिंदू? ये परदेसी मुसलमानों ने आपको हिंदू बनाया है। तो उसकी नजर में तो गजवाए हिंद, तब कहाँ जाओगे? पीछे पड़े ही है। They are staunch enemies of Hindus and they are wiping out. सब प्रकार का जिहाद बना के सबको फंसाते हैं। Prabhupada came and he showed unfathomable compassion on our plight of this Kali Yuga. First of all, we lost every kind of discrimination. And he showed what is right. हम तो अपना है, भक्ति करने का मिलता है, प्रसाद खाने का मिलता है, दर्शन करने का मिलता है, और क्या चाहिए? हमारा जीवन धन्य हो गया। इतना काफी नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये सारा चैतन्य महाप्रभु के सैन्य में हमने भर्ती किया है, सभी की जिम्मेदारी है। जा रे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा ना तारे ही देश, गुरु है तारे ही देश। उन्होंने तो कहा कि पृथ्वी ते चाहिए नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार पे हो बमराना। प्रभुपाद ने किया, आप करो प्रभुपाद के पीछे। Everybody experiences that Corona has given more opportunity to
reach out to the people. हाँ? सब लेकर बैठ जाओ, प्रभुपाद जी ने क्या क्या नहीं दिया है। कोई भी पुस्तक ले लो, पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ाना शुरू कर दो, दोनों साथ साथ में हो सकता है। हाँ, look at that. प्रभुपाद जी का टाइपराइटर जो चोरी हो गया था ना, वो कोरोना टाइपराइटर, कोरोना नाम की कंपनी का था। कहाँ वो कोरोना ने, कहाँ ये कोरोना। What is the news today? 1,68,000. Not in India. Now, I got the news that China, the death rate has been increasing so fast that now they are puzzled. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki गौर भक्त वृंद की जय। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे विश्वासं विजायते शरीरार विद्याजाल गोविंद्रयता है पाल विशेषादरे भारमते जुहायति सुधर्मति आके पिता कठिन संसारे